تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ کیا عہدہ ہے؟ کتنی طاقت ہے؟ کتنی دولت ہے؟ اس سے تم طے نہیں ہوتے، اس سے تم متعین نہیں ہوتے۔ ان چیزوں، ان عہدوں، اس طاقت، اس دولت کے حوالے سے جو تمہارا رویہ ہے وہ طے کرتا ہے کہ تم کیا ہو۔ تم اپنی زیر قبضہ، اپنے زیر تسلط چیزوں، اپنے کنٹرول میں موجود کسی طاقت سے خود کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور یہی تم غلط ہو جاتے ہو۔ چیزوں کے قبضے سے خود کو متعین کرنے کی اس کوشش میں تم نے انسانی تعلقات کو بھی زہریلا کر دیا ہے۔ تم لوگوں سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ان سے نہیں ملتے، بلکہ ان کے ساتھ تمہارا جو ملکیت کا چکر ہوتا ہے اسی عدسے سے ان کو دیکھتے ہو۔ اور یہ وہ حالت ہے کہ جس میں کوئی بھی رشتہ بامانی نہیں ہو سکتا۔ یہ جسے تم تشدد کہتے ہو، یہ تمہارے قبضے کی خواہشی سے ابھرتا ہے۔ یاد رکھنا، صرف متشدد انسان ہی پوزیسو ہوتا ہے۔ جس کے اندر تشدد ہوتا ہے، ایگریشن ہوتا ہے، وہی چیزوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی تم کسی چیز پر، کسی شخص پر، کسی سچویشن پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہو، تم متشدد ہو جاتے، کیونکہ بنا متشدد ہوئے، اگریسو ہوئے مالک ہونا ناممکن ہے۔ ملکیت تشدد ہے، اور چیزوں کی ملکیت تو خیر کسی حد تک قابل قبول ہو بھی سکتی ہے، لیکن لوگوں کا مالک بننے کی کوشش بہت خطرناک رویہ ہے۔ شوہر مالک ہے بیوی کا، والدین مالک ہیں بچوں کے، زمیندار مالک ہے ہاری کا، آقا مالک ہے غلام کا، حکمران مالک ہے رعایا کا۔ یہ جو مالک ہونے کی خواہش ہے، یہی زہر ہے، اور یہی زہر تمہارے سارے رشتوں کی بنیاد بن گیا ہے۔ اس لیے اوریجنل رشتے تم تخلیق ہی نہیں کر پاتے۔ باپ بیٹے کا مالک ہے، پیر مرید کا مالک ہے، حکمران رعایا کا مالک ہے۔ مالک اور مملوک، آقا اور غلام کے درمیان حقیقی رشتہ کبھی بن ہی نہیں پاتا، بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب اس ریلیشن شپ کو ان کی بینگ، ان کا ہونا طے نہیں کر رہا، بلکہ ان کا سٹیٹس طے کر رہا ہے۔ یہ جو میاں بیوی، والدین اولاد، حکمران رعایا کے تمہارے سارے رشتے دیوالیہ پن کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ اس کی وجہ یہی رویہ ہے جو رشتے میں موجود دو لوگ دکھاتے ہیں۔ جہاں رشتے میں دو لوگ نہیں بلکہ دو سٹیٹس انوالو ہوں، اس رشتے میں تشدد ہونا ناگزیر ہے۔ ملکیت کی نیچر پر غور کرو نا۔ ملکیت کیسے ہو سکتی ہے جب تک ایک قابض ہونے کا رویہ نہ دکھائے اور دوسرا مقبوضہ نہ نظر آ رہا ہو؟ بنا کسی کو غلام بنائے آپ مالک ہو کیسے سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سونپے بنا پوزیسونیس کیسی؟ کبھی تم لوگوں نے سوچا کہ انسان کے دل میں یہ جو مالک بننے کی خواہش ہے، یہ کیوں ہے؟ کیوں دوسرے کو غلام بنانے کی تمنا ہے؟ دوسرے کا مالک بننے میں آخر ایسی کیا لذت ہے؟ اتنی دلچسپی اس میں آخر کیوں ہے؟ اس کی بہت گہری نفسیاتی وجہ ہے، کیونکہ تم اپنے مالک نہیں۔ جو انسان اپنا مالک ہو جاتا ہے، اس کے نفسیاتی ڈھانچے میں اس خواہش کے بیج ہی نہیں رہتے کہ وہ دوسروں کا مالک ہو جائے۔ آج کے انسان کو غور سے دیکھو، ہر انسان مالک ہونا چاہتا ہے، کسی پر قبضہ جما لینا چاہتا ہے۔ وہ بھکاری جو سارا دن راستے سے گزرنے والے ہر مسافر کی غلامی کرتا ہے، وہ بھی شام کو گھر پہنچتا ہے
तो बीवी का मालिक बन जाता है, बच्चों का मालिक बन जाता है। वो क्लर्क जो दफ्तर में 10 लोगों के हुक्म सुनकर घर पहुंचता है, वो भी हुक्म चलाने वाला बन जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी मिल्कियत तुम्हारे पास नहीं है। अपना मालिक ना होना एक ऐसा एहसास से कमतरी पैदा करता है कि तुम तमाम उम्र लोगों और चीजों के मालिक बनने की कोशिश में रहते हो, मगर ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें तुम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। सारी जमीन के भी तुम मालिक हो जाओ तो अपने मालिक ना होने की कमी इससे पूरी नहीं हो सकती। अपना मालिक होना जॉय है, खुशी है, पीस है, स्टिलनेस है, जबकि दूसरे की मिल्कियत सिवाय दुख के और कुछ नहीं। तुम फैक्ट्री मालिक हो, करोड़ों लोग फैक्ट्री का मालिक होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी चाहते हैं। तुम उस फैक्ट्री के मालिक हो, मगर तुम देखते हो वही फैक्ट्री जो करोड़ों लोगों के लिए खुशी और तस्कीन का ख्वाब है, वो तुम्हें दुख, एंजाइटी और डिप्रेशन दे रही है। गरीबों को खुशी दौलत की मिल्कियत में नजर आती है, लेकिन वो जो दौलत का मालिक है खुश वो भी नहीं है। तुम अपने मालिक हो तो हर चीज तुम्हें खुशी दे सकती है, लेकिन अगर तुम मालिक नहीं हो तो दुनिया की हर मिल्कियत भी अपने नाम लगा लो तो भी तुम खुश नहीं हो सकते। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आए। तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है। गरीब भी इतना ही दुखी है जितना अमीर दुखी है। जिसकी मिल्कियत में एक झोंपड़ी है वो भी परेशान है, और जो रियासतों का मालिक है वो भी नींद की गोली बिना सोने से कासिर है। अपना मालिक होना है हकीकी सुकून। सूफी क्यों गदड़ी में भी खुश होता है, महल में भी पुरसुकून? क्योंकि उसका सुकून मिल्कियतों से जुड़ा हुआ नहीं है। उसकी राहत उसकी अपनी मिल्कियत से जुड़ी है। तुम मगर दूसरों पर मिल्कियत चाहते हो, और दूसरे का मालिक होना ही असल दुख है। इसलिए कभी गौर करना कि जिसकी मिल्कियतें जितनी ज्यादा होती जाती हैं वो उतना ही दुखी होता जाता है। जिंदगी भर यही एक एहसास से कमतरी कचौके लगाता रहता है कि हम अपने मालिक नहीं, और इस एहसास से कमतरी को एहसास से बरतरी में ढालने के लिए तुम इस कायनात की हर चीज, हर दूसरे शख्स पर कब्जा जमा लेना चाहते हो। मगर ये सारे तुम्हारे कंट्रोल में आ भी जाएं तो भी वो राहत तुम्हें नहीं मिल सकेगी कि जो पाने के लिए तुम ये कब्जे कर रहे हो, क्योंकि ये राहत सिर्फ एक पर मिल्कियत पा लेने से हासिल होती है, और वो एक हो तुम प्यास हो, और तुम पर तुम्हारी मिल्कियत है पानी। तुम्हारी प्यास तुम्हारी मिल्कियत का पानी ही बुझा सकता है, और दूसरों की मिल्कियत को पाकर इस प्यास को बुझाने की अगर तुम कोशिश करोगे तो ये ऐसा ही है कि जैसे कोई आग से प्यास बुझाने की कोशिश करे। दूसरा आग है, दूसरे की मिल्कियत इस आग को खुद में उंडेलने की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं। इससे तुम्हारी प्यास और बढ़ती जाती है। देखते नहीं हो, जो जितना ज्यादा कमाता जाता है दौलत की प्यास उसकी बढ़ती जाती है। जो जितना मशहूर होता जाता है मशहूर होने की प्यास और बढ़ती जाती है। जो जितना ताकतवर होता जाता है ताकत की तलब और बढ़ती जाती है। और ये दौलत, शोहरत, ताकत चाहे जिस भी क्वांटिटी में तुम्हारे पास हो जाए, तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकेगी, क्योंकि आग की नेचर ही नहीं कि वो प्यास बुझाए। दूसरे का मालिक बनकर अपनी मिल्कियत को आज तक कोई नहीं पा सका है। बल्कि कभी गौर से देखो, एक मजे का वाकया होता है।
जितना तुम दूसरे के मालिक बनते जाते हो, जितने ज्यादा लोग अपने कब्जे में करते जाते हो, जितनी ज्यादा शोहरत को अपनी जेब में ठूंसते जाते हो, जितनी ज्यादा ताकत को अपने बस में करते जाते हो, उतने तुम उल्टा गुलाम होते जाते हो। वो जो 10,000 रुपए का मालिक होता है, वो उसकी गुलामी कुछ कम करता है, उसकी जिंदगी पर उसका हक कुछ ना कुछ बचा ही रहता है। लेकिन वही इंसान जब अरबपति हो जाता है तो अब उस पर उसका कब्जा तकरीबन खत्म हो जाता है। अब उसे बिजनेस कंट्रोल करता है, मुआशी पॉलिसियां उसे कंट्रोल करती है, अब उसकी फैक्ट्रियां उसे कंट्रोल करती है। जो जितना ज्यादा सियासी कामयाबी समेटता जाता है और सियासी ताकत पाता जाता है, वो अपने काबू में नहीं रहता, बल्कि उसको लोगों की राय कंट्रोल करती है। कभी अपने सियासतदानों के इंटरव्यूज को गौर से सुना करो। ये अपनी पार्टी की पॉलिसियां बोलने में अपनी जात को कैसे कुचलते रहते हैं। चीजों और लोगों पर कब्जा एक ऐसी पहेली है कि जिसमें तुम मालिक नजर तो आ रहे होते हो, मगर असल में होते गुलाम जाते हो। मिल्कियत दोहरे चेहरे का एक भूत है। इसको सिर्फ तुम ही गुलाम नहीं बनाते, ये भी तुम्हें अपना गुलाम बनाता है। तुम अपने इर्द गिर्द गौर से देखो। ये जो शौहर अपनी बीवी का आका बनने का दावेदार है, ये उसकी गुलामी में भी उतना ही है। इसके लिबास से लेकर इसके मिलने जुलने तक तुम पाबंदी लगाते हो, मगर उसके आंसू उसकी ख्वाहिशों के गुलाम भी तो बनते हो। बच्चों पर मिल्कियत का दावा है, कभी गौर करना, बच्चों के तुम मालिक नहीं होते, उनके गुलाम भी हो जाते हो। उनके लिए ही तुम्हारी सारी दौड़ धूप रह जाती है। दूसरे की मिल्कियत हमेशा दो मुही होती है। एक मुही मिल्कियत सिर्फ अपनी ही हो सकती है। तुम्हारा वजीर आजम, तुम्हारा सदर, चाहे तुम्हें पूरे मुल्क का मालिक नजर आ रहा हो, वो पूरी तरह गुलाम हो जाता है। अवामी राय का गुलाम, आलमी दबाव का गुलाम, मुआशी हालात का गुलाम, पड़ोसी मुल्कों की पॉलिसी का गुलाम, सुपर पावर्स के फैसलों का गुलाम। एक वाकया सुनो। एक आदमी था, एक गाय को लेकर एक गांव से गुजर रहा था। गाय बड़ी अड़ियल और जिद्दी थी। आदमी उसे आगे खींचता और वो पीछे जोर लगाती। एक सूफी फकीर भी वही गांव में रहता था। किसी बरगद के दरख्त तले बैठा उसे देख रहा था। लोग उस फकीर के इर्द गिर्द बैठे थे। फकीर ने लोगों की तरफ देखा और पूछा, बताओ जरा, ये गाय इस बंदे से बंधी है या बंदा इस गाय के साथ बंधा है? लोगों ने कहा, बाबा जी, साफ साफ नजर आ रहा है, सामने की हकीकत है, बंदा मालिक है, गाय इसके साथ बंधी है। तो फकीर ने पूछा, अगर इस वक्त गाय रस्सा तोड़वाकर भाग जाए तो ये बंदा जो इसे खींच रहा है, ये इसके पीछे भागेगा कि नहीं भागेगा? लोगों ने कहा, भागेगा। तो फकीर ने कहा, गौर से देखो, गाय एक रस्सी से बंधी है। वो रस्सी जो तुम्हें नजर आ रही है, वो जो बंदा है इस गाय के साथ, वो भी एक रस्सी से बंधा है। बस वो रस्सी तुम्हें नजर नहीं आ रही। बस इतना ही फर्क है, वरना दोनों ही एक दूसरे से बंधे हैं। बल्कि अगर बंदा भाग जाए तो गाय उसके पीछे भागेगी भी नहीं। तो कौन किस से बंधा है, कौन किसका गुलाम है? यही तुम्हारे सारे बंधन है। फैक्ट्री जाने लगे तो तुम उसके पीछे भागोगे, लेकिन तुम भाग जाओ तो फैक्ट्री तुम्हारे पीछे आना भी पसंद नहीं करेगी। दौलत तुमसे भागने लगे तो तुम उसे पकड़ोगे, तुम दौलत से भागने लगो तो वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश तक नहीं करेगी। शोहरत तुमको छोड़ने लगे तो तुम उससे चिमटोगे, तुम शोहरत को छोड़ो तो वो कभी तुमसे नहीं चिमटेगी। कौन किसका गुलाम है? तुम कभी गौर से देखना, तुम्हारी मिल्कियतों के गले में रस्सी है जिसको तुमने पकड़ रखा है। वो रस्सी नजर आ रही है, लेकिन तुम्हारे गले में भी रस्सी है जिनको तुम्हारी इन मिल्कियतों ने, इन पोजेशंस ने पकड़ रखा है।
वो रस्सी बस तुम्हें नजर नहीं आ रही है। याद रखना, मालिक और गुलाम में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि एक की रस्सी नजर आ रही होती है, दूसरे की रस्सी नजर नहीं आ रही होती। एक की गुलामी साफ होती है, क्लियर, वाजे, एक की गुलामी छुपी हुई होती है। तुम जिसे गुलाम बनाते हो वो भी तुम्हें गुलाम बना लेता है। ये एक बड़ी दिलचस्प गेम है। इसमें पता ही नहीं लगता कि पोजेसर कब पोजेस्ड हो गया, मालिक कब गुलाम हो गया। रूहानियत और कुछ भी नहीं, तसव्वुफ और कुछ भी नहीं, बस इस खोज का नाम है कि मैं अपना मालिक कैसे हो जाऊं। तुमने तसव्वुफ को, रूहानियत को जाना नहीं है। तुम्हारा एक फिरका कहता है सूफी काफिर है, तसव्वुफ पैरेलल दीन है। तुम्हारा दूसरा फिरका कहता है तसव्वुफ असल दीन है। दोनों मुखालिफ सिमतों पर खड़े हैं, मगर चिमटे हुए एक तसव्वुर से। दोनों एक अदद तसव्वुर के मालिक हैं और उसी तसव्वुर के गुलाम हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि तसव्वुफ कोई थॉट नहीं, तसव्वुफ दूसरे पर इन्हिसार के खात्मे का नाम है, दूसरे के मिटाने का नाम है। तुम किसी के मालिक नहीं, तुम किसी के गुलाम नहीं, तुम एक हो, वाहिद कॉन्शियसनेस जिसने ये रंगो नूर का खेल रचाया हुआ है। ये दुनिया तुम्हारे शऊर के दायरे में हो रही एक एक्टिविटी है। तुम बतौर कॉन्शियसनेस बस एक हो। पुराने जमानों की बात है, गांव था, उसमें एक फकीर रहता था, एक मस्त सूफी फकीर। उसकी मौत का वक्त आ गया तो उसने गांव वालों को कहा कि मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये पैसे इस गांव के सबसे गरीब आदमी को सौंप कर मरना चाहता हूं। गांव में ऐलान करा दिया गया। गांव के सारे गरीब उस फकीर के पास आने लगे, मगर फकीर सबको रिजेक्ट करता गया। तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो। फकीर सारे गरीबों को रिजेक्ट कर गया। इसी असना में गांव का सबसे अमीर आदमी अपनी सवारी पर वहां से गुजरा तो फकीर ने अपने सारे पैसे उसकी सवारी में डाल दिए। अमीर आदमी ने भी फकीर का वो ऐलान सुन रखा था कि सारे पैसे वो गांव के किसी गरीब आदमी को देगा। अमीर आदमी हंसने लगा। उसने कहा, बाबा जी आप भूल रहे हैं, आपने तो ऐलान किया था कि गांव के सबसे गरीब आदमी को अपनी दौलत देंगे, और जिसकी रथ में आपने पैसे डाले हैं वो आपके गांव का सबसे दौलतमंद इंसान है। तो फकीर ने उस अमीर आदमी को जवाब दिया कि जिसके पास कम चीजें हैं उसकी गुलामी भी कम है, उसकी गरीबी भी कम है। तुम्हारे पास चीजें ज्यादा हैं, तुम्हारी गुलामी भी बड़ी है और तुम्हारी गरीबी भी बड़ी है। और जिनके पास कम है उन्होंने तो शायद ज्यादा को पाने की उम्मीद भी छोड़ दी है, मगर जिनके पास ज्यादा है उनके और पाने की ख्वाहिश का भी कोई हिसाब, कोई हद नहीं। तुमसे ज्यादा गरीब आदमी मैंने आज तक इस बस्ती में नहीं देखा है कि तुम्हें हर वक्त मजीद की जरूरत है, इसलिए ये पैसे मैं तुम्हें देता हूं। फकीर की बात पर गौर करो, इतनी भी गलत बात वो नहीं कह रहा। बड़े गुलाम वही हैं जिन्हें ये इल्यूजन हो जाता है कि वो दूसरों के आका हैं, और बड़े गरीब वही हैं जो बाहरी चीजों से अंदर की गरीबी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, जेल में कैदी ही कैद नहीं होता, वो भी कैद होता है जिसने उनको कैद कर रखा होता है। कैदी ही कैद नहीं होता, जेलर भी कैद होता है। बस फर्क इतना है, एक सलाखों के इस तरफ है, एक सलाखों के उस तरफ। ना सलाखों के अंदर वाला भाग सकता है, ना सलाखों के पीछे वाला भाग सकता है। बल्कि लुत्फ की बात तो ये है कि सलाखों के अंदर मौजूद कैदी तो भागने के मंसूबे भी बना सकता है, सोच भी सकता है, भागने की तदबीरें भी कर सकता है। जो सलाखों के बाहर बैठा है वो तो भागने की तदबीरें भी नहीं करता, भागने का ख्याल भी उसमें पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इस भरम, इस इल्यूजन का शिकार हो चुका है कि वो आजाद है।
वो मालिक है। एक डाकुओं का गिरोह था। उन्होंने एक बार एक सियासी लीडर को पकड़ लिया, अगवा कर लिया। डाकुओं का ये गिरोह बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने लीडर को तसल्ली दी, घबराओ नहीं, डरो नहीं, हम दोनों ही एक जैसे हैं, एक ही बिरादरी के लोग हैं। सियासी लीडर ने कहा कि वो कैसे? डाकुओं के सरदार ने कहा, देखो, हम में बड़ी सारी बातें हैं जो मिलती जुलती हैं। तुम्हारे आगे पुलिस चलती है, हमारे पीछे पुलिस चलती है। तुम पुलिस की तरफ से आगे से बंधे होते हो, हम पीछे से बंधे होते हैं। और हाँ, ये याद रखो, आगे पुलिस हो तो भागना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस पीछे हो तो भागने की गुंजाइश भी रहती है। गौर करना कभी, ये जिंदगी का सबसे बड़ा राज है, जिसको तुम बांधते हो, जिस पर कब्जा जमाते हो, उसको बांधने के लिए उससे तुम्हें भी बंध ही जाना पड़ता है। ये राजों से भरी जिंदगी है। इनकी बुनियादों को, इनकी तहों को समझ जाओगे तो बाहर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे गहरा राज एक है कि मैं अपना मालिक हूं। अगर ये राज तुम पर ना खोल सका तो तुम दुनिया की हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते रहोगे, और इसी कोशिश में अपनी गुलामी की जंजीरों को इतना कसते जाओगे कि आजादी का इम्कान ही खो जाएगा। जिसके होने का एहसास अपने मालिक होने से जुड़ा है और जिनका एहसास से ज़ात चीज़ों की मलकियत से निकला है, इन दोनों के होने के ढंग ही मुख्तलिफ होते हैं। तुम अपनी आंखों से देखो और तुम्हें अपना मालिक भिखारी लग रहा हो और चीज़ों का मालिक शहंशाह, तो ये तुम्हारे देखने का, बसारत का और बसीरत का मसला तो हो सकता है, मगर ये हकीकत नहीं है। डायोजनीज कल्बी कदीम दौर का एक यूनानी फलसफी गुजरा है। उसका एक बड़ा शानदार किस्सा है, ज़रा उसे सुनो। डायोजनीज एक तारिक दुनिया फलसफी था। ऐसे ही जहाँ ठिकाना मिलता वहीं लेट जाता, जो खाने को मिलता वो खा लेता। एक दिन एक सहरा की झाड़ी उसका मस्कन थी कि वहाँ से 4-5 दोस्त गुजरे। उन्होंने देखा कि एक मलंग किस्म का हट्टा कट्टा इंसान पड़ा है। इसको पकड़कर गुलामों की मंडी में बेच देते हैं। अच्छी सेहत है, महंगे दामों बिक जाएगा। डायोजनीज ने भी उनकी खुसर फुसर सुन ली और कहा, मुझे बेचना चाहते हो? तुम मुझसे बात करो, आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? उसने कहा, चलो, मैं बिकने को तैयार हूँ। गुलामों की मंडी में उसे ले जाया गया। वो खुद ही उस चबूतरे पर चढ़ गया जहाँ गुलामों को बांधा जाता था और शहर के उमरा उनकी बोली लगाते थे। वहाँ खड़े होकर उसने ऐलान किया कि आज एक आज़ाद इंसान अपना मालिक बिकने आया है। कोई है तुम गुलामों में से जो इस मालिक को, इस आज़ाद शख्स को खरीदे? अब सामने शहर के सारे अमीर उमरा जमा थे जिन्हें डायोजनीज गुलाम कह रहा था। डायोजनीज की बात में बड़ा गहरा राज था। जो अपना मालिक है, आज़ाद तो वही है जो चीज़ों का मालिक है मगर अपनी मिल्कियत से आगाह नहीं। वो कैसा आज़ाद? कभी गौर करो, तुम अपने मालिक हो। एक वाकया होता है, तुम्हें अंदर से हिला देता है। एक थॉट जहन में पैदा होता है, तुम लरस जाते हो। जो अपने जिस्म की इस महदूद सी सल्तनत में भी उठ रहे एहसासात और जज्बात को काबू में अपने हाथ में न रख पाता हो, वो मालिक काहे का? वो तो गुलाम है। और तुम अपने मालिक क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि तुम हो क्या, और जिस चीज़ को तुम जानते ही नहीं हो उसकी मिल्कियत भला कैसे हाथ आए? इंसान क्यों बाहरी चीज़ों को पकड़ रहा है, उनका मालिक बनने की अंधी दौड़ रहा है? क्योंकि इन्हीं मिल्कियतों से उसे होने का एहसास मिल रहा है। चीज़ें ना हो, मकान ना हो, गाड़ी ना हो, नौकरी ना हो, ओहदा ना हो, फैमिली ना हो, कोई पेशा ना हो, हत्ता के नाम भी तो बाहरी चीज़ है जो वालिदैन ने दिया है। वो नाम ना हो तो क्या कहोगे तुम खुद को कि क्या हो तुम? बाहरी चीज़ों की मिल्कियत होती है
تو آپ کو ہونے کا ایک احساس ملتا ہے۔ شوہر بیوی کو ملکیت سمجھتا ہے، والدین اولاد کو ملکیت سمجھتے ہیں، حکمران عوام کو ملکیت سمجھتے ہیں، جاگیردار ہاری کو ملکیت سمجھتے ہیں۔ یہی ملکیتیں ہیں جن سے اناج چمٹتی ہے تو پھر آپ کو ٹائٹل ملتا ہے۔ اور کبھی غور کرو، جس بھی شخص کو تم اپنی ملکیت بناتے ہو اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہو، مارتے ہو، کیونکہ مارنے کے حق کے بنا، دبانے کی طاقت کے بنا ملکیت ملتی کہاں ہے؟ یہ استاد جو شاگردوں کو مار رہا ہے وہ کیا دکھا رہا ہے؟ جو باپ بیٹے کو مار رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوں مار رہا ہے؟ اسے مارنے کے لیے۔ کوئی مالک بنے گا تو دوسرے کو غلام بنائے بنا وہ مالک کیسے ہوگا؟ اور غلام کوئی کب بنتا ہے؟ جب اندر اس کی روح مر جاتی ہے۔ وہ جو اپنے باطن میں زندہ ہے اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ استاد والدین شاگردوں کو، بچوں کو دباتے ہیں، مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں تاکہ ان کا وہ حقیقی احساس ذات مر سکے جسے غلام نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں وہ جھوٹا سیلف امیج تراشا جاتا ہے تاکہ وہ والدین کی، استاد کی مار سے بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، اس مار کو بھی اپنے ہونے کے احساس میں شامل کر سکیں۔ زندہ انسان کو مملوک نہیں بنایا جا سکتا، مالک تو کسی مردہ چیز کا ہی بنا جا سکتا ہے۔ مکان مردہ ہے، آسانی سے مالک بن جاتے ہو، گاڑی مردہ ہے، آسانی سے مالک بن جاتے ہو، مگر انسان مردہ نہیں ہے تو اس کا مالک بننے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ پہلے اسے مردہ کرتے ہو، پھر اس کے مالک بنتے ہو۔ کبھی کسی بڑے دفتر میں کام کر رہے لوگوں کی نفسیات کو پرکھو، انہیں سمجھو۔ ہر بڑا عہدیدار چھوٹے عہدیدار کو دبا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، کچل رہا ہے، اور اس بڑے افسر کو اس کے اوپر بیٹھا کوئی بڑا افسر ویسے ہی کنٹرول کر رہا ہے۔ انسانوں کو مردہ کیے بنا ان کو غلام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بلکہ کوئی بھی زندہ چیز کیسے غلام بنائی جا سکتی ہے جب تک اس کا ایسنس، اس کا جوہر تباہ نہ کیا جائے۔ تم دیکھتے ہو کئی لوگ ہیں جنہوں نے گھر میں شیر پال رکھا ہوتا ہے، وہ شیر بالکل کتے کی طرح ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر شیر ویسا ہی شیر ہوتا جیسا اسے ہونا چاہیے، کوئی جنگل سے شیر لے آتا اور پھر آ کر اسے اپنے گھر میں رکھتا تو پتہ چلتا کہ شیر کو پالنا کیا ہوتا ہے۔ نہیں، شیر کو پہلے ڈرا کے، دھمکا کے، ڈنڈا دکھا کے، بھوکا رکھ کے اس کے احساس سے ذات کو تبدیل کیا جاتا ہے، جھوٹا اور مردہ شیر بنایا جاتا ہے، پھر ہی جا کے وہ قابو میں آتا ہے۔ اب وہ قابو میں ہے تو پالتو ہے، لیکن وہ شیر نہیں ہے، بس شیر کی کھال ہے، شیر کا سٹرکچر ہے۔ تم نے کبھی غور سے دیکھا کہ انسانوں کو بھی سماج اپنے مطابق بناتا ہے تو پھر انہیں قبول کرتا ہے؟ زندہ انسانوں کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ ہزار رسمیں، روایتیں، قوانین، جیل خانے، عدالتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ انسان ویسا ہو سکے جیسا معاشرہ قبول کرتا ہے۔ معاشرہ ہر انسان کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھتے ہو جو تھوڑے سے بھی معاشرے کی روش سے ہٹے ہوئے انسان ہوں انہیں تم کلنک بنا دیتے ہو، انہیں باغی کہتے ہو، بدتمیز کہتے ہو، مجرم کہتے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سماج کی فیکٹری کے مطابق بنے ہوئے روبوٹ نہیں ہیں۔ زندہ انسان کو روبوٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ زندہ انسان کے احساس ذات کو، اس کی آئی ایم نیس کو پہلے ڈومیسٹیکیٹ کیا جاتا ہے۔ معاشرے کو کاریگر چاہیے، معاشرے کو ڈاکٹر چاہیے، معاشرے کو عالم چاہیے، وکیل، جج، پولیس والے، سیاستدان، پائلٹ چاہیے۔ اس کے لیے ساری اسکیمیں تیار کی جاتی ہیں۔ بقا کو کرنسی، نوٹوں سے جوڑا جاتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے پیسے کو ضروری سمجھنے کی سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے۔ کامیابیوں کو عہدوں اور بینک بیلنسز سے جوڑا جاتا ہے۔ جب یہ سارے ڈر، ساری لالچیں بچے میں مستحکم ہو جاتی ہیں تو پھر اسے معاشرے کی فیکٹری کا آسانی سے پرزہ بنایا جا سکتا ہے۔
لیکن اگر کوئی زندہ انسان تمہارے اداروں میں، تمہارے دفتروں میں آ جائے تو ادارے، دفتر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسکول میں دیکھتے ہو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ ہماری روایات ہیں، یہ اصول ہیں، ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ کبھی غور کرو ساری روایتوں پر۔ ساری روایتیں طاقتوروں کے حق میں ہوتی ہیں۔ بچہ ماں باپ کا احترام کرے، طالب علم کو استاد کا احترام کرنا چاہیے، عوام کو حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے، مقتدی کو امام کی پیروی کرنی چاہیے، مرید کو پیر کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اب ان دونوں قسم کے لوگوں کی الگ الگ فہرست بنائیں۔ ایک طرف ہیں والدین، استاد، حکمران، امام، پیر، تو دوسری فہرست میں آتے ہیں بچے، طالب علم، عوام، مقتدی اور پیر۔ پہلی فہرست میں سارے طاقتور ہیں، دوسری فہرست میں سارے کمزور ہیں۔ تو آپ کی روایات جو نسلوں سے منتقل ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ کمزوروں کو طاقتوروں کا مطیع رکھنے کا ٹول۔ اور ان کا کیا مقصد ہے؟ ایک طرف ملکیت کا دعویٰ رکھنے والے ہیں، دوسری طرف وہ جن کو ملکیت بنایا جاتا ہے، جن کو ملکیت بنانا مقصد ہوتا ہے۔ ان کی IMS کو دبانے کے لیے ہی تم سارے اصول بناتے ہو، رواج اور روایتیں بناتے ہو۔ کسی زندہ انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اسی لیے تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور تمہاری ملکیت کی جد و جہد بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں رہا تو تم اس کے مالک کبھی نہ ہو سکو گے۔ زندہ انسان کو تم قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ قابو میں رکھنا ہے تو پھر اس کی IMS کو مارنا ہوگا۔ جب تک اس کی روح مرے گی نہیں تب تک تم مطمئن نہیں ہوگے، اور جب اس میں روح مر جاتی ہے پھر تم مطمئن ہو جاتے ہو کہ ہاں اب یہ کہیں نہیں جائے گا۔ بالکل سرکس کے اسی ہاتھی کی طرح جسے اس کے بچپن میں ایک کمزور سی رسی سے باندھا جاتا ہے۔ ہاتھی اب بڑا ہو جاتا ہے اور چاہے تو ایک جھٹکے سے رسی توڑوا دے مگر نہیں توڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ زندہ ہاتھی بچا ہی نہیں۔ اب ہاتھی کی شکل کا وہ روبوٹ ہے۔ اب اس کی رسی چھوڑ بھی دو تو وہ کہیں بھاگے گا ہی نہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کو مار کر تم اس کے مالک بنتے ہو، اس کے مالک ہونے کی لذت بھی کھو جاتی ہے۔ مردہ ملکیت کبھی زیادہ دیر تک تمہیں خوشی نہیں دے سکتی۔ سوچو کبھی اس مکان کے بارے میں جس کو حاصل کیا تھا تم نے اتنی مشکلوں سے، اتنے جتن کر کے جو مکان تعمیر کرتے ہو۔ چند سال تک اس میں رہنے کے بعد اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی، چاہے وہ مکان محل ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس محل کو کروڑوں لوگ حسرت بھری نظر سے دیکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں، مگر اس محل کے مکینوں کو اس میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے دل کی دنیا میں کوئی ہلچل پیدا کرے۔ جس نوکری، جس عہدے کو پانے کی بڑی حسرت ہوتی ہے، وہی نوکری، وہی عہدہ چند سال میں بوجھ بن جاتا ہے۔ جس ڈریم کار کو پہلے دن لا کر تم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اب اس میں تمہاری کوئی دلچسپی کیوں باقی نہیں ہے؟ اور ٹھیک یہی کچھ تمہاری انسانی ملکیتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا کہ وہ بچہ جو تمہارے مطابق ہی مکمل ڈومیسٹیکیٹ ہو جائے، پالتو انسان بن جائے، وہ زندگی کی دوڑ میں خود بھی ناکام ہوتا ہے، والدین کی بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ وہ ایک ناکارہ پرزے کی طرح گھر میں رہتا ہے اور پالتو روبوٹ کی طرح معاشرے کو سرو کرتا ہے۔ وہ باس جو ہر ملازم کو اپنے حکم کے مطابق چلانا چاہتا ہے، اس کی دلچسپی سب سے پہلے اپنے اسی ورکر میں کم ہوتی ہے جو مکمل طور پر اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ مردہ چیزوں کی ملکیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ دیر تک تمہاری دلچسپی نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھو، جس چیز کے تم مالک ہو جاتے ہو وہ بے قیمت ہو جاتی ہے، کیونکہ مالک ہوتے ہی وہ چیز مردہ ہو جاتی ہے، اور مردہ چیز کے مالک ہونے میں کوئی خوشی نہیں رہ جاتی۔ کبھی تم نے نوٹس کیا کہ محبوبہ جتنی خوشی دیتی ہے،
बीवी कभी उतनी खुशी नहीं दे पाती। क्यों? लेकिन महबूबा को बीवी बनाने की ख्वाहिश हर महबूब में होती है, क्योंकि महबूबा की मिल्कियत नहीं है भी तो कन्फर्म नहीं है, जबकि बीवी की मिल्कियत कन्फर्म होती है। इसलिए तो इंसान हर चीज़ को अपने नाम लगवाने के चक्कर में रहता है। खातून महबूबा थी, मर्द महबूब था, तो इस ताल्लुक़ में लुत्फ़ ही कुछ और था। वही महबूबा या महबूब शौहर या बीवी बन गई तो अब इस ताल्लुक़ में वो लुत्फ़ बाकी ना रहा, क्योंकि मिल्कियत का पेपर हाथ में आ गया और जिस भी चीज़ के तुम मालिक हो गए, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अपनी दिलकशी खो देगी, बेमानी हो जाएगी। कभी गौर करो, जिस इंसान को तुम पाने की ख्वाहिश करते हो उस ख्वाहिश में बड़ा मज़ा होता है, लेकिन जब उसी इंसान को तुम पा लेते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेमानी हो जाता है। कभी गौर से देखिएगा, वो लोग जो लोगों को अपना बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उन पर जल्दी वो वक्त आता है कि वो लोगों में दिलचस्पी खो देते हैं। घर का वो शख्स जो घर के लोगों को अपने मुताबिक बनाने के चक्कर में रहता है, वो उस घर का पहला फ़र्द होता है जो घर वालों से बेजार होता है, क्योंकि लोगों को अपने मुताबिक बनाने में कोशिश करना पड़ती है, बहुत मुशक्क़त सहना पड़ती है। यही लोग होते हैं जो बाद में चीज़ों को मिल्कियत बनाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। वो मकानों, दुकानों, बिजनेसों, शोहरतों और ताकतों के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनका मालिक बनने के लिए उन्हें बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस कागजात ही अपने नाम कराने पड़ते हैं। इसलिए जो लोग चालाक होते हैं वो जल्द ही लोगों पर मिल्कियत जमाने की बजाय चीज़ों के मालिक बनने की दौड़ में पड़ जाते हैं। इससे उनकी मुशक्क़त तो कम हो जाती है, मगर सुकून नाम की किसी चीज़ से वो फिर भी महरूम रहते हैं, क्योंकि सुकून, इत्मीनान, खुशी तो बस एक ही मिल्कियत में है, अपनी मिल्कियत में। इसलिए तुम दुनिया के नामवर तरीन फातिह देख लो, तारीख़ के अमीर तरीन लोग देख लो, कई लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे कि जिन्होंने सब कुछ पाकर सब कुछ छोड़ दिया और सूफियों के पाँव में जा बैठे, मगर आज तक एक भी हकीकी सूफी, एक भी फ़कीर अपनी फ़कीरी को छोड़कर चीज़ों के पीछे चलना शुरू नहीं हुआ। आखिर क्या ऐसी लज्जत हो सकती है जंगलों, सहराओं, गारों में पड़े रहने से, अपनी गदड़ी में मस्त रहने से? एक ही लज्जत, अपनी मिल्कियत। जो अपना मालिक है उसे फिर किसी बैरूनी खुशी की ख्वाहिश ही नहीं रहती। तुम घर में कुर्सी ले आते हो तो बस तुम उसके मालिक हो, अब उस पर बैठो ना बैठो कोई परवाह नहीं होती। लेकिन घर में किसी इंसान को ले आओ तो पहले उसे कुर्सी बनाने में मुशक्क़त करनी पड़ेगी, परेशानी उठानी पड़ेगी, और जब उस शख्स को कुर्सी बना लेते हो तो ऐसा नहीं होता कि कामयाब हो गए, बल्कि अब परेशानी फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान जब कुर्सी बन जाता है तो फिर उसमें वो मानी, वो लज्जत रह ही नहीं जाती। मतलब ये है कि लोगों के मालिक बनने की ज़रूरत है या चीज़ों पर कब्ज़ा जमाने की चाहत, दोनों ही फजूल कोशिशें हैं। हाँ, जो चालाक होते हैं वो इतने चालाक ज़रूर होते हैं कि वो चीज़ों पर मेहनत करते हैं, दौलत कमाने पर, मकान बनाने पर, गाड़ियाँ इकट्ठी करने पर, बैंक बैलेंस बनाने पर मेहनत करते हैं। और जो नादान लोग होते हैं वो लोगों का मालिक बनने की कोशिश करते रहते हैं। वो चालाक इसलिए हैं कि मुर्दा चीज़ों का सिर्फ मालिक बनना होता है, और दूसरे नादान इसलिए हैं कि वो डबल मुशक्क़त करते हैं। वो पहले ज़िंदा लोगों को मुर्दा बनाने पर मेहनत करते हैं और फिर मालिक बनते हैं, जबकि आखिर में दोनों की हालत फिर वही होती है कि जो शायर ने इस शेर में बयान की है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने जाना। वो चालाक है जो चीज़ों का मालिक बनने के पीछे जाता है, वो नादान है जो लोगों का मालिक बनने की कोशिश करता है। मगर ये दोनों ही ज़िंदगी के सबसे बुनियादी राज से जाहिल हैं। दोनों ही ये नहीं जान पा रहे कि हम न चीज़ों से खुद को भर सकते हैं न लोगों से खुद को भर सकते हैं। तुम्हें अगर कोई चीज़ भर सकती है तो वो हो तुम खुद से भर जाओ तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती।
कोई बाहरी चीज या बाहरी शख्स फिर तुम्हें मुकम्मल करने वाला नहीं रह जाता, फिर तुम खुद में ही मुकम्मल हो। याद रखना, तुम भर सकते हो तो सिर्फ खुद से भर सकते हो और कहीं कोई भराव नहीं है। इस दुनिया में जो भी आज तक भर पाया है वो खुद से ही भर पाया है। कभी किसी को चीज़ों या लोगों ने नहीं भरा है, न भर सकता है। तुम अपने मालिक हो जाओ, तुम भर गए। तुम अपने मालिक हो तो ये अब तुम पर है कि इस वक्त तुम खुशी चाहते हो या गम चाहते हो, काम चाहते हो या बेकाम बैठना चाहते हो। ये है तुम्हारी मिल्कियत, ये है तुम्हारी जन्नत। जो तुम चाहो वो सोचो, जो तुम चाहो वो फील करो। मिल्कियत यही तो है। सोचो, अगर तुम्हारे बस में, तुम्हारे कंट्रोल में हो तो क्या चुनोगे, खुशी या गम? यकीनन खुशी। फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम उस जिंदगी के तजर्बे के आका नहीं हो जिस तजर्बे से तुम गुजर रहे हो। तुम उस पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस से आगाह नहीं हो जो तुम्हारी आईएमनेस है। तुम जिस्म बन गए हो या जहनी नफ्सियाती ढांचा। जिस्म और जहन मिलकर तुम्हारी अना बनाते हैं और अना हमेशा दूसरे की मिल्कियत पर जीती है। तुम्हारे अंदर एक मकाम शऊर है जो किसी दूसरे पर मुनहसर नहीं है। अगर तुम उससे एक हो तो फिर तुम्हें भरने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम खुद के लिए काफ़ी हो। तुम्हारा एक ही मसला है, तुम अपने मालिक नहीं हो। और जो अपना मालिक नहीं वो सिकंदर भी हो जाए तो कुछ ना पाएगा, और भिखारी भी रह जाए तो भी कुछ ना पाएगा। जो अपना मालिक हो जाए वो सिकंदर होकर भी सब पा गया, और वो भिखारी होकर भी सब पा गया। सिकंदर होना या भिखारी होना तुम्हारा मसला नहीं, अपना मालिक होना या ना होना तुम्हारा मसला है। किसी दिन खामोशी से तन्हा बैठो और खुद से पूछो, जो भी तुम्हारे पास है, जिसके भी तुम मालिक हो, क्या उससे जरा सा भी तुम भर सके हो? जो भी कुछ तुम्हारे पास है, क्या उसने इंच भर भी तुमको भरा है? तुम देखो ना, सबके पास कुछ ना कुछ है। इस कुछ ने जरा सा भी अगर आपको भरा है तो इस कुछ को बढ़ाने में लगे रहो, क्योंकि अगर इतने से कुछ भर गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भर पाओगे। लेकिन अगर जो कुछ भी इस वक्त तुम्हारे पास है उससे तुम ज़रा सा भी नहीं भरे हो तो समझना कि अगर इस कुछ से मैं कुछ भी नहीं भर पाया हूँ तो ये कुछ जितना भी ज़्यादा हो जाए ये भर नहीं सकेगा, क्योंकि ये कुछ वो चीज़ ही नहीं जो भरती हो। ये तो साफ साफ रियाजियाती और शुमारियाती मसला है। ये कोई सूफियाना राज नहीं, कोई रूहानी हिकमत नहीं है। सादा सा सवाल है जो खुद से पूछना है कि जो भी कुछ मेरे पास है इससे क्या मैं थोड़ा सा भी भर पाया हूँ? अगर हाँ तो और कमाओ और बनाओ, अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ जितना भी ज़्यादा हो जाए ये तुम्हें भर नहीं सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में आज तक जो भी इंसान आए हैं ये उनका तजर्बा रहा है कि कुछ भी उन्हें नहीं भर सका है। ये इंसान का एक ऐसा तजर्बा है जो जितनी बार भी दोहराया गया है साबित हुआ है, मगर ये हज़ारों नस्लों का तजर्बा भी तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारी ख्वाहिशों से हार जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी राह तुम्हारे सामने ही नहीं है। दूसरी राह कि तुम अपने मालिक हो। मालिक तो किसी ऐसी ही चीज़ का बना जा सकता है जिसको तुम जानते हो, और ख़ुद को तुम जानते ही कहाँ हो। कभी तुम जिस्म हो, कभी तुम दिमाग हो, कभी तुम चीज़ें हो। तुम्हारी असल मिल्कियत तो वो है जिसका ये जिस्म है, जिसका ये दिमाग है। जिस्म तुम कैसे हो सकते हो? 1 किलो से जिस्म 100 किलो तक पहुँच गया। दिमाग तुम कैसे हो सकते हो? एक थॉट से दिमाग करोड़ों थॉट्स का मेमोरी कार्ड बन गया। मगर तुम में से कोई है जो 1 किलो के जिस्म को भी मैं कहता था, 100 किलो के जिस्म को भी मैं कहता है। तुम में कोई है जो एक थॉट के जहन को भी मेरा जहन कहता था, और 1 अरब थॉट्स के हामिल जहन के मेमोरी कार्ड को भी मैं कहता है। वो मैं जो मुस्तकिल है वो हो तुम। अगर तुम उसके मालिक हो तो तुम भरे हो, और अगर उसकी मिल्कियत नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें भर नहीं सकती। और उसका मालिक होने की पहली शर्त है उसे जानना। उसे जानना जो कहता है ये मेरा जिस्म है, उसे जानना जो कहता है
یہ میرا دماغ ہے، جس کا یہ جسم ہے، جس کا یہ دماغ ہے، وہ ہے مالک، اور اسی کو جاننا ہے اپنی اصل ملکیت کو جاننا۔